Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is the third lecture of the course Introduction to Special Theory of Relativity. We discuss the well-known transformation, Lorentz transformation, and the application of Lorentz transformation. And finally, this is assignment related to Lorentz transformation. Dear students, Lorentz transformation has its own physical significance. The basic idea behind Lorentz transformation is to get form invariance of space-time laws of physics when transformed from one frame of reference to another frame which is moving with constant velocity. That is, under this law or transformation, space-time's laws of physics remain same as they are. लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही है जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बिहेवियर था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये प्रूव किया था कि the velocity of the objects is very small as compared to velocity of light, then the laws of physics will remain invariant in both frames, और frames को हमने कहा था S and S dash. Now, Lorentz transformation is a generalization of Galilean transformation. और इसमें हमें ये प्रूव करना है कि when the particles are objects moves comparable to velocity of light, then the laws of physics or laws of space-times are invariant in both frames. Conditions exactly उसी तरह की हैं जो हमने Galilean transformation में यूज़ की थी, सिर्फ इसमें और गलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क ये होगा कि गलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम जो था वो एब्सोल्यूट था, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। न्यूटोनियन ने गलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करते वक्त स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स लिए, लेकिन लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे कि स्पेस के साथ साथ एक टाइम कोऑर्डिनेट भी है। सो टाइम इटसेल्फ बिहेव लाइक a coordinate. Now let's start to prove Lorentz transformation. ये फिगर आप देख रहे हैं, इस फिगर में we have two frame of reference. Again, the conditions on the frame of reference are same as in Galilean transformation. That is, initially both the frames at time t is equal to 0 has origin coincident, and after time t the frame S dash moves along the positive x-axis with a uniform velocity v. यहाँ पे हम एक इवेंट कंसीडर करते हैं, सपोज दैट इवेंट इज कॉल्ड p, एंड चूंकि मैंने ये कहा था कि लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन में हम टाइम को भी एज ए कोऑर्डिनेट डील करेंगे, सो दिस पॉइंट p हैज कोऑर्डिनेट्स t, x, y and z with respect to frame S, and with respect to S dash it has coordinates t prime, x prime, y prime and z prime. और ये आप फिगर में देख सकते हैं कि आफ्टर टाइम t फ्रेम S dash का ओरिजिन जो है वो O से O dash हो गया है। नो ट्रांसफॉर्मेशन को अप्रूव करने के लिए हम इंटरवल वाले फैक्ट को यूज करते हैं, जिसमें हमने ये कहा था in a two dimension the quantity c square t square minus x square is independent of the relative motion of the frame S and S dash. और लेटर ऑन हमने उसी एक्सप्रेशन को जनरलाइज कर दिया था इन टर्म्स ऑफ स्पेस टाइम।
इस केस में हमारे पास पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z एंड t, और अगर हम वही डेफिनेशन यूज करें इंटरवल वाली, that is the distance between P and O, where O is the origin, then we have x square plus y square plus z square minus c square t square. And again, this expression is invariant under the relative motion of the objects or frames S and S dash. So therefore we have this expression x square plus y square plus z square minus c square t square is equal to x prime square plus y prime square minus z prime square minus c square t prime square. C square is same on both sides of the equation because c is constant, जिसको हमने last composition of velocity में prove भी किया था, it will remain same for all inertial observers. Now since s dash जो है वो move कर रहा है with velocity v relative to frame s in the positive x-axis, so only जो change आएंगी वो with respect to coordinate x-axis आएंगी, and the event looks to be same with respect to coordinates y and z, क्योंकि only frame s dash move कर रहा है along x-axis, therefore events looks to be same for coordinates with y and z, and this is called the law of isotropy. यही लॉ अगर हम यूज करें, दैट इज y प्राइम इज इक्वल टू y एंड z प्राइम इज इक्वल टू z इन द अबव इक्वेशन 1, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन में ये टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, y स्क्वायर बोथ साइड पे कैंसिल हो जाएगा एंड z स्क्वायर ये भी बोथ साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद only x square minus c square t square is equal to x prime square minus c square t prime square, और ये वही क्वांटिटी है जो हमने इंटरवल को प्रूव करने के लिए निकाली थी. फर्दर हम यहाँ पे इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट्स यूज करना चाहते हैं. इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट्स हैज इट्स ओन फिजिकल सिग्निफिकेंस. There are many applications of imaginary time in special relativity. That is, imaginary time is used to elaborate the phenomena of expansion of universe. So there are many applications. One of them is हम यूज करते हैं imaginary time को expansion of the universe को elaborate करने के लिए. ये एक्सप्रेशंस हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं इमेजिनरी टाइम के लिए, दैट इज कैपिटल T इज इक्वल टू अयोटा सी टी एंड T प्राइम इज इक्वल टू अयोटा सी टी प्राइम. ये दोनों वैल्यूज अगर हम लास्ट इक्वेशन में पुट करें, देन वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस टी प्राइम स्क्वायर. अगेन ये एक्सप्रेशन हमें बता रहा है कि दिस एक्सप्रेशन is invariant with respect to frame S and S dash, or it is independent of the relative motion of frame S and S dash. और अगर हम यहाँ पे कह दें कि ये एक्सप्रेशन इनवेरिएंट है अंडर रोटेशन and say theta is the angle of rotation, then we know the coordinate transformation in plane of two coordinates x and t, which are given by x prime is equal to x cosine theta plus t sine theta and t prime is equal to minus x sine theta plus t cosine theta. टारगेट हमारा यहाँ पे ये है कि हमने इनफैक्ट कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करना है जैसे हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज किया था, और वहां पे हमने एक्सप्रेशन निकाले थे x प्राइम इज इक्वल टू x माइनस वी टी, y prime is equal to y and z prime is equal to z,
और टाइम चूंकि एब्सोल्यूट होता है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, देयरफॉर t इज इक्वल टू t प्राइम था। सो यहाँ पे भी हमने x प्राइम को रिलेट करना है कोऑर्डिनेट्स x के साथ, और इसी तरीके से t प्राइम को रिलेट करना है, y प्राइम को रिलेट करना है, और z प्राइम को रिलेट करना है। सो यहाँ पे हम कुछ फैक्ट यूज करते हैं, दैट इज व्हेन x प्राइम इज जीरो। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी होता है, तो इस केस में अगर हम x प्राइम को जीरो ले लें, देन वी हैव रिलेशन x इज इक्वल टू वी टू। इसका मतलब ये है कि ओरिजिन ऑफ s डैश एज ऑब्जर्व्ड बाय s मूव्स अलोंग x डायरेक्शन विद स्पीड v। और इस इक्वेशन में यहाँ पे स्मॉल t की जगह हम जो हमने इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट डिफाइन किया है, अगर हम उसकी वैल्यू इंसर्ट कर दें, then we have x is equal to vt over iota c। एक कंडीशन अगर हम ये यूज करते हैं x प्राइम इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी अगर हम x की वैल्यू यूज करते हैं vt over iota c, जो लास्ट टू हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लिखे हैं अंडर रोटेशन, तो पहली इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इनटू दिस फॉर्म, दैट इज 0 is equal to vt over iota c cosine theta plus t sin theta। Remember, we have we can define here from the above equation tan theta is equal to iota v over c, and using the fact that cosine theta is equal to 1 over secant theta, which may also be written as 1 over 1 plus tangent square theta। और अगर हम यहाँ से tangent theta की वैल्यू पुट करें, then we get cosine theta is equal to 1 over 1 minus v square over c square। फर्दर हम cosine theta को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 over 1 माइनस बीटा स्क्वेयर स्क्वेयर रूट, और यहाँ पे बीटा को हमने लेट किया है v over c, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कहते हैं कि लेट दिस विल बी इक्वल टू गैमा। अब इक्वेशन 4 हमारे पास थी x प्राइम इज इक्वल टू x कोसाइन थीटा प्लस t साइन थीटा, और अगर हम इस पूरी इक्वेशन में से कोसाइन थीटा कॉमन ले लें, देन वी गेट x प्लस t टेंजेंट थीटा। यहाँ पे हम वैल्यूज यूज कर सकते हैं जो अभी अभी हमने ड्राइव की हैं, दैट इज कोसाइन थीटा को हमने लेट किया दिस इज इक्वल टू गैमा, और कैपिटल टी चूंकि इमेजिनरी टाइम था उसको हमने पुट कर दिया आयोटा सी टी, और टेंजेंट थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी आयोटा बी ओवर सी। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो iota iota will be iota square, that is -1, and c will be cancelled out, and we have an expression, it is x prime is equal to gamma x minus vt। This is one of the equation of Lorentz transformation। now इसके साथ equation 5 थी, अगर यही assumptions जो हमने यहाँ पे यूज की हैं to develop equation 6, तो यही चीज़ें हम यूज करते हैं इक्वेशन 5 में, और उसमें हम लेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी लेट करेंगे बिकॉज वहाँ पे कैपिटल टी था, उसकी वैल्यू हमने यूज कर दी कैपिटल टी प्राइम इज इक्वल टू आयोटा सी टी प्राइम, और राइट हैंड साइड पे अगेन जैसे हमने इक्वेशन 6 में किया है साइन थीटा को हमने कॉमन निकाला है, तो वहाँ पे रह जाएगा माइनस एक्स प्लस टी टेंजेंट थीटा, और अगेन अगर हम वैल्यू यूज करेंगे कोसाइन थीटा इज इक्वल टू गैमा, एंड कैपिटल टी की जगह यूज करेंगे आयोटा सी टी, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू यूज करेंगे आयोटा बी ओवर सी, देन वी गेट इक्वेशन 7। along with equation 7, 6 and 7 we have through law of isotropy, that is y prime is equal to y and z prime is equal to z. These four equations 6, 7 and along with y prime is equal to y and z prime is equal to z are called Lorentz transformation. Now similar expressions निकल सकते हैं
यहाँ पे हमने कंडीशन ली थी फ्रेम एस डैश मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस. If we say frame S dash moves along y axis, then there is change in y coordinates and t coordinates. In that case, x and z will remain same. और इस केस में हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनेंगी, that is x prime is equal to x, y prime is equal to gamma into t minus vy over c square, z prime is equal to z, and t prime is equal to gamma t prime minus vy over c square. और सिमिलरली आप z प्राइम के लिए भी ऐसे ही ड्राइव कर सकते हैं. सो जस्ट वी नीड टू रिप्लेस द कोऑर्डिनेट इन विच द फ्रेम s डैश इज मूविंग. जनरल इक्वेशन हमने फ्रेम x के लिए अलॉन्ग द x एक्सिस निकाली, और जैसे जैसे आप इसको चेंज करेंगे अलॉन्ग y एक्सिस तो x की जगह y आता जाएगा और x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा. अगर आप कहते हैं कि हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग z एक्सिस तो उस केस में x और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और चेंज जो आएगा वो अलॉन्ग z एक्सिस आएगा. लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर फ्रेम s से s डैश में जा सकते हैं तो आप s डैश से s में भी आ सकते हैं. दैट इज we can transform equation from unprime to prime or prime to unprime coordinates. और इसके लिए बड़ा सिंपल है कि अगर आप अभी हमने जो इक्वेशन निकाली है x प्राइम y प्राइम z प्राइम और t प्राइम के लिए, जिसमें फ्रेम s डैश मूव कर रहा था अलोंग x एक्सिस, और अगर हम चाहते हैं कि नहीं अब फ्रेम s मूव करें अलोंग नेगेटिव x एक्सिस और हम इक्वेशन निकाल लें विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर s, तो उस केस में जस्ट यू हैव टू रिप्लेस द प्राइम कोऑर्डिनेट विद अनप्राइम and unprime coordinate with prime coordinates and velocity with negative velocity. तो वही जो लास्ट इक्वेशन थी आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x प्राइम t प्राइम y प्राइम और z प्राइम था, वो सारे हो गए अनप्राइम में, दैट इज x t y और z. जबकि राइट हैंड साइड पे जो अनप्राइम थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया है विद प्राइम, दैट इज x प्राइम t प्राइम t प्राइम एंड x प्राइम, और राइट हैंड साइड पे y प्राइम और z प्राइम आ गए. और साथ ही हमने जो प्लस v था वहाँ पे नेगेटिव v चेंज कर दिया. सो समटाइम हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें फ्रेम s मूव कर रहा होता है इन द नेगेटिव x एक्सिस, तो हम ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे. और जब हमें ये कहा जाएगा कि फ्रेम s डैश मूव कर रहा है अलोंग x पॉजिटिव x एक्सिस, तो फिर हम प्राइम से अनप्राइम में जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब हम अप्लाई करते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को एक क्वेश्चन पे, और वी कैन से दिस इज एप्लीकेशन ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन. इनिशियल कंडीशंस वही हैं जो हमने लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूफ करते वक्त ली. दैट वी हैव टू इनर्शियल फ्रेम्स s and s dash, and s dash is moving with uniform velocity v along the positive x axis. इस केस में हमें एक पार्टिकल की मोशन को देखना है और उस पार्टिकल की मोशन को ऑब्जर्व करता है फ्रेम s डैश, और उसको ये लगता है कि उसकी मोशन जो है वो एक सर्कल बना रही है, और हमें ये देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s उस पार्टिकल की मोशन जो है वो एलिप्स है, जबकि उसका सेंटर जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी गैमा v ओवर a. इन शॉर्ट, motion of the particle with respect to frame s dash is a circle, and we have to prove the motion of that particle with respect to s is
form an ellipse whose center is moves with velocity gamma v over a। तो इस केस में हमें जो गिवन है जो कि फ्रेम एस डैश में ऑब्जर्वर बैठा है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो मोशन ऑफ द पार्टिकल है या उसका पाथ ऑफ द पार्टिकल है वो एक्स प्राइम प्लस वाई प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज अ सर्कल। अब हमें ये शो करना है कि ये विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस जो है वो एलिप्स बनेगी। तो हमारे पास रिलेशन है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमने ड्राइव किया है, दैट इज एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा इंटू एक्स माइनस वी टी वाई प्राइम इज इक्वल टू वी। तो हम वो यूज करते हैं यहाँ पे और इसमें ए जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है। इस एक्सप्रेशन में अगर हम वैल्यू यूज करते हैं लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की, इक्वेशन जो बनती है वो गैमा स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वी टी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। ना हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज एन एलिप्स और वी नो द equation of the ellipse with center 0 0 is x square over a square plus y square over b square is equal to 1, where a and b are the major and minor axes of the ellipse। तो हमें वो शेप इसकी कन्वर्ट करनी है उस तरह से। हमने इसमें कुछ एडजस्टमेंट की इस तरीके से कि हमने ए स्क्वेयर को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया सो दैट वी गेट 1 ऑन द राइट हैंड साइड एंड वी आल्सो use gamma square inside this expression। और चूंकि हमने ये भी प्रूव करना है कि उसका सेंटर जो है वो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी टी ओवर गैमा वी ओवर ए। तो हमने यहाँ पे गैमा एक्स को लेट कर लिया है कि लेट दिस विल बी गैमा एक्स ओवर ए इज इक्वल टू एक्स टिल्डा, सो दैट ये प्रॉपर शेप हमें उस तरीके से लगे जिस तरीके से हमने एलिप्स की शेप होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन अगर हम कंपेयर करें जनरल इक्वेशन जो है उसकी, अगर उसका सेंटर एच और के है तो उस केस में आपके पास जो इक्वेशन बनती है एक्स माइनस एच स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उससे कंपेयर करें तो इसका सेंटर जो बन रहा है वो गैमा वी टी ओवर ए है एंड 0। In the last, there are two questions as an assignment. In the first question, you need to show Lorentz transformation form a group. That is, you have to satisfy the four axioms. That is, identity element, inverse law, associative law, and clear law. And the second question, you have to show this expression is invariant under Lorentz transformation. इसमें आपको प्रूफ ये करना है सी स्क्वेयर टी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर टी प्राइम स्क्वेयर माइनस एक्स प्राइम स्क्वेयर माइनस वाई प्राइम स्क्वेयर माइनस जी प्राइम स्क्वेयर। और इसमें आपने यूज जो करनी है प्राइम कोऑर्डिनेट्स जो मैंने आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दिखाई थी कि अनप्राइम को प्राइम के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, तो वो एक्सप्रेशन आपने यूज करना है इसको प्रूफ करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।